We greet you all in the name of Jesus Christ. और प्रभु यीशु के नाम से हम आपको सलाम करते हैं Hope you are all fine. और आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक हैं। Today we will again go into the study of Revelation. और फिर से प्रकाशित वाक्य की किताब की और हम अध्ययन करेंगे। Till last week we have studied from 4th chapter. और पिछले सप्ताह तक हमने चौथे अध्याय से इसमें से अध्ययन किया था We have detailed study on 3rd verse. और तीसरे वचन में हमने वहां पर अध्ययन किया था। Now 4th chapter verse 4 speaks about, और यहाँ पर चौथा अध्याय की चौथी आयत इस तरह से कहती है, and round about the throne were 4 and 20 seats, and upon the seats I saw 4 and 20 elders sitting clothed in white raiment, and they had in their heads crowns of gold. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और थे, जिन पर 24 प्राचीन बैठे हुए थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके सिर पर सोने के मुकुट थे। So there are 24 elders here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 लोग यहाँ पर हमें दिखाई देते This हैं was a representation of the church of God, और ये परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है। because they had white clothes, और यहाँ पे दिखाया कि उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, which were given to church when they have accepted Christ individually. और जब वैयक्तिक और पर्सनली जब हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, तो कलीसिया को ये श्वेत वस्त्र दिए गए हैं। Then it says, and they had on their heads crowns of gold. और वचन कहता है कि उनके सिर पर सोने के मुकुट थे। What are these crowns of gold? फिर ये जो सोने के मुकुट है वो क्या है? These crowns are given to the church for their different ministries which they have done. और ये जो सोने के मुकुट है वो कलीसिया को दिए गए हैं, जो अलग अलग भागों में जो वो सेवकाई करते हैं। You have a crown, I have a crown, and every believer who is in the kingdom of God will have one or other crown, because we are involved in one or other ministry. क्योंकि ये आपके पास ये मुकुट है, मेरे पास ये मुकुट है, और कलीसिया के हर एक विश्वासी के पास ये मुकुट होगा, जो परमेश्वर के लिए अलग अलग भागों में जाकर सेवकाई करता है। Then verse 6 says, और छठवां वचन कहता है, and before the throne there were a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and around about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. सिंहासन के सामने पारदर्शी कांच का स्फटिक सागर सा फैला था। सिंहासन के ठीक सामने तथा उसके दोनों ओर 4 प्राणी थे, उनके आगे और पीछे आंखें थी। There was a sea of glass. और यहाँ पे देखते हैं कि कांच का स्फटिक सागर, which speaks about laver in the tabernacle, and priests used to wash themselves and purify themselves, which is called as sanctification in the spiritual truths. और हम देखते हैं कि इसका ये जो प्रतीक है, जो निवास मंडप में जो बर्तन हुआ करता था, जिसे शुद्धिकरण के लिए वहां पर याजक वहां पर यूज किया करते थे, तो ये उसी को दर्शाता है। And then there were also 4 beasts. और यहाँ पर 4 प्रकार के प्राणी भी हम देखते हैं। What are these beasts? और ये प्राणी क्या है? These beasts are not like it is typified as a beast. और ये प्राणियों के तौर पर ही नहीं दिखाए गए हैं, but these beasts are having authority to release, and they have authority to release few things. और उनको ये अधिकार था कि कुछ चीजों को वो मुक्त करे। Now let's go and read further in 7th verse. और आगे चल के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast face was like a man, and the fourth beast was like a
living flying eagle. पहला प्राणी सिंह के समान था, दूसरा प्राणी बैल के जैसा था, तीसरे प्राणी का मुख मनुष्य के जैसा था और चौथा प्राणी उड़ते हुए गरुड़ जैसा था। Then verse 8 says, 8वां वचन कहता है, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. इन चारों प्राणियों के 6 पंख थे, उनके चारों ओर तथा भीतर आंखें ही आंखें भरी थी। दिन रात वो निरंतर कहते रहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, जो था, जो है और जो आने वाला है। These 4 beasts were busy in worshiping. और हम देखते ये जो चारों प्राणी हैं परमेश्वर की आराधना में वो व्यस्त हैं। You know, in heaven we have angels, we have cherubims, we have seraphims. और हम देखते हैं कि स्वर्ग में वहां पर केरुबिम्स हैं, वहां पर सराफिम्स हैं और अन्य स्वर्गदूत हैं। In Isaiah 6th chapter we read about them, that they are worshiping God day and night, saying holy, holy, holy. और यशाया के 6वें अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं जो परमेश्वर में निरंतर परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में करते हैं और कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर। What a privilege to worship God day and night. और परमेश्वर की आराधना करने का कितना सुंदर अवसर उन्हें वो मिला है। And we are definitely a people who are blessed to have worship such a holy God and glorify His name. और इतना महान परमेश्वर को हम महिमा और उसका आदर हम कर सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। Whoever you may be, और आप कोई भी हो, the Lord has great purpose and plan for you. परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति एक महान उद्देश्य है। That is to worship the Lord. और यह है कि आप परमेश्वर की आराधना करें। Worshiping Him in all the 24 hours of the day. और दिन के 24 घंटे परमेश्वर की आराधना हम करें। So there were angels in heaven. और हम देखते हैं कि वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर के दूत है। There are also 24 elders in heaven. और 24 वहाँ पर और लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं, प्राचीन लोग। Then there are 9. There are 4 beasts in heaven who are not keeping quiet but worshiping the Lord. और 4 प्रकार के प्राणी भी हम देखते हैं जो कभी भी रुकते नहीं है लेकिन निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। Now 9th verse says, और अब 9वां वचन कहता है, when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. और 9वां वचन कहता है, जब ये सजीव प्राणी उस अजर अमर की महिमा, आदर और धन्यवाद कर रहे हैं जो सिंहासन पर विराजमान था। Then verse 10 says, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying. और 10वां वचन कहता है, तो वे 24 प्राचीन उसके चरणों में गिरकर सदा सर्वदा जीवित रहने वाले की उपासना करते हैं। वे सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं और इस तरह से कहते हैं। Then 11th verse says, thou art worthy. और 11वां वचन कहता है हमारे प्रभु, oh thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. और है हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा, समादर और शक्ति पाने के सुयोग्य है, क्योंकि तूने ही अपनी इच्छा से सभी वस्तु को सर्जी है। You have seen children playing. और हम जब देखते हैं कि जब बच्चे खेलते हैं, when children playing, they make a small nest in the sand particles. और हम देखते हैं कि मिट्टी में वो छोटे-छोटे कभी-कभी घर बनाते हैं। Why they do that? और वो क्यों बनाते हैं? They do it for their own pleasure. वो
खुद की खुशी के लिए वो बनाते हैं। It is not to show to someone, or it is not that someone will go and stay there, nothing. और वो कोई किसी और के लिए नहीं या फिर कोई और जाके उसमें रहेगा इसके लिए वो नहीं होता है। Here, if we see in 11th verse, यहाँ पे जो 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, God created everything परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, for what He created. और उसने जो भी बनाया, Whole creation, whole nature, whole universe, all galaxies, and everything was created. और सारा ब्रह्मांड, सारा जो हम आकाश में तारा मंडल जो भी देखते हैं, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से ही बनाई गई है। Whole thing was created for the pleasure of God. और परमेश्वर की इच्छा से उसका अस्तित्व हुआ है। It is wonderful to see how God really rejoices to create the creation. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को निर्माण करने के बाद उसको जो खुशी मिली है वो इसमें हम देख सकते हैं। That's why in Genesis 1st chapter we read, और इसलिए हम उत्पत्ति की पहली आयत में, पहले अध्याय में हम देखते हैं, each day when He created something, He oversaw the whole thing, and then He passed a resolution saying it is good. और हर एक चीज जिसने परमेश्वर ने जो हर एक दिन बनाई, उसने जाकर उसे टटोला और उसके बाद उसने कहा कि ये अच्छा है। Then in the last verse, after creating human beings, then He says it is a very good. और जब सबसे आखिरी चीज उसने जब मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद उसने इस तरह से कहा कि ये बहुत अच्छा है। You know, whatever He created for a purpose, and He created with a great enthusiasm and with a great joy. एक आनंद के साथ, एक इच्छा के साथ परमेश्वर ने जो भी आज तक बनाया है उसने खुशी से बनाया हुआ है। As a created being, और इसलिए एक निर्मित होने के कारण, as a created being, are we living up to His expectation? और एक निर्मित होने के कारण क्या हम परमेश्वर की इच्छा अनुरूप चलते हैं? Beloved, what happened to the creation if we read? और प्रियो, जब जिस निर्मित की सृष्टि के बारे हम देखते हैं तो उसका क्या हुआ, वचन उसके बारे में क्या कहता है? Let's see the first chapter once again. फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय हम देखेंगे। First chapter, उसका पहला अध्याय, and then let's read maybe 17th verse. और उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों में मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ। Praise the Lord. So God is assuring John here that He is the first and He is the end. और यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को इस बात की तसल्ली दे रहा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। Now let's go to next verse. और आगे के वचन में हम देखते हैं 18th verse. 18वां वचन, और मैं ही वह हूँ जो जीवित है, मैं मर गया था किंतु देख अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। He was dead, but he is alive today. और वो मर गया था लेकिन वो आज जिंदा है। And then he is having the keys of hell and heaven. और उसके पास स्वर्ग और नरक की या फिर अधोलोक की कुंजियां हैं। Then verse 19. और 19वां वचन, इसीलिए जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो कुछ भविष्य में घटने जा रहा है उसे लिखते जा। So God is commanding him to rewrite everything whatever he sees. और परमेश्वर ने यूहन्ना से आज्ञा की है कि जो कुछ तूने देखा है उसे लिखते जा। So whatever the past and whatever the present and whatever the future, he is asking him to write everything. और जो कोई भूतकाल है, जो वर्तमान है, जो भी भविष्य में घटने जा रहा है, जो भी वो देखेगा उसे परमेश्वर ने हर एक चीज लिखने को कहा। Now let's go to verse 20. और 20वीं आयत की हम और जाएंगे। The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the 7 angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest
are the seven churches. ये जो 7 तारे हैं जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा है, और ये जो 7 दीपाधार है, इनका रहस्यपूर्ण अर्थ है कि ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, तथा ये 7 दीपाधार 7 कलीसियाएं हैं। Now, in verse 13, और अब देखते हैं कि 13वीं आयत में, first chapter, verse 13, it says, "And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot." और पहले अध्याय की 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और उन दीपाधारों के बीच मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मनुष्य के पुत्र जैसा कोई पुरुष था, उसने अपने पैरों तले एक लंबा चोगा पहन रखा था। So here we see that there are 7 churches, and then there is one who is in the midst of 7 churches. और हम देखते हैं इस वचन में कि यहाँ पर 7 कलीसिया है, और एक व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देता है जो 7 कलीसियाओं के बीच में खड़ा है। Now, if we read in first chapter, Jesus is in the midst of 7 candlesticks. और हम देखते हैं कि इस पहले अध्याय में कि यीशु इस 7 दीपाधारों के बीच में है। He is moving, he is having the central place in the churches. और हम देखते हैं वो वहां पर घूम रहा है, और कलीसियाओं के बीच में उसकी वो जगह है। Next, in third chapter, और आगे तीसरे अध्याय में देखते हैं, by the end of the all 7 churches, और इस 7 कलीसियाओं के खत्म होने के बाद every church has had a message. और हर एक कलीसिया को एक संदेश वहां पर है। What is the message in third chapter, verse 20? और तीसरे अध्याय के 20वें आयत में वो क्या संदेश है? It says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." सुन, मैं द्वार पर खड़ा और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ खाना खाएगा। In first chapter, Jesus is in the midst of the 7 candlesticks. और हम देखते हैं पहले अध्याय में कि मसीह यीशु उन 7 दीपाधारों के बीच में है। Jesus is in the 7 churches, or midst of the 7 churches, and he is having central place. और यीशु उन 7 कलीसियाओं के बीच में खड़ा है, उस केंद्र स्थान पर वहां पर वो है। But in third chapter, verse 20, we read that he stands at the door. लेकिन तीसरे अध्याय के 20वें वचन में हम देखते हैं कि वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। What happened? क्या हो रहा है? We have kicked him out from the central place to the outer periphery. और उसका मतलब यह होता है कि वो केंद्र स्थान की जगह से हमने उसे बाहर निकाल दिया है। Our churches are kicked out. हमारी कलीसियाओं ने उसे निकाल दिया है। Our institutions are kicked out, the central figure of our institution. यीशु का जो केंद्र स्थान था, जो हमारे संस्थाओं में होना चाहिए, वहां से उन्होंने उसे निकाल दिया है। He is at the door knocking to enter in again. और इसलिए वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है ताकि कोई उसे अंदर ले ले। Today, what about ourselves? आज हमारे लिए क्या है? Can we say Jesus is having central place in my heart? क्या हम कह सकते हैं कि यीशु मेरे हृदय के बीच में है? Can we say Jesus is having central place in my family? और हम कह सकते हैं कि यीशु मेरे परिवार के बीच में है? Can we say, Lord, you are center to my life and my family? और क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु हाँ तू ही है जो मेरे जीवन का मध्य और मेरे परिवार का मध्य है? Or we have kicked out Jesus? या फिर हमने यीशु को बाहर निकाल दिया है? There are people who speak about their houses. There are people who boast about their cars and whatever the blessing they receive. और कई ऐसे लोग हैं जो खुद के घर के बारे में, खुद की गाड़ियों के बारे में और खुद की संपत्ति के बारे में बातें करते रहते हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या It होता है? means that priority has become for gifts, and giver of gifts is kicked out. और जो प्राथमिकता थी, जो देने के लिए जो होनी चाहिए थी, उसे ही लोगों ने अपने अंदर से निकाल फेंका है। Today we have kicked him out, and he is outside standing at the door and then knocking. और इसलिए वो आज बाहर खड़ा है क्योंकि हमने उसे अपनी जगह से निकाल फेंका है। It is definitely a sorrowful thing to see and painful for Jesus himself
that he is kicked out and then he is knocking patiently from outside. और ये बहुत दुखित घटना है ये हमारे लिए भी, यीशु के लिए भी, कि हमने उसकी जगह से उसे निकाल फेंका है और इसलिए वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। So that Jesus is right in the middle, but he is now outside, and we do not know about your condition. You can tell to the Lord how you treat him, and then do you give him priority and first place. और इसलिए वो बाहर जाकर वहां पर खटखट करा रहा है। मुझे आपकी परिस्थिति के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अगर है तो यीशु को आज विनती करे कि वो बाहर खटखटा रहा है तो उसे वो अंदर ले ले। Here in 4th chapter, यहाँ पर इस चौथे अध्याय we में have seen that the throne is at the middle center, हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन वहां पर बीच में है and all the 24 elders are around him worshiping him. और वो 24 प्राचीन जो है उसके इर्द गिर्द वहां पर हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। Angels are worshiping him, परमेश्वर के दूत उसकी आराधना कर रहे हैं and then all the beasts also are worshiping him. और ये जो प्राणी है वो भी उसकी आराधना कर रहे हैं Heavenly beings are busy in worshiping. और स्वर्गीय जो लोग हैं वो आराधना में मगन हैं। Today church is busy in something else than worship. और आज देखते हैं कि कलीसिया आराधना के बजाय की किसी और काम में ही लगी हुई है। Today we are very busy in different things and different getting this, that, getting healing, and then getting this and that, and then saying tata bye bye to God. और हम देखते हैं कि कलीसिया और किन चीजों में व्यस्त हो चुकी है, ये करना है, वो करना है, चंगाई की है, सभा है, ये है, वो है, और कोई चीजें वहां पर कर रहे हैं और परमेश्वर का हमने टाटा बाय बाय करके निकाल दिया है। So 2nd and 3rd chapters of Genesis speaks about the church and conditions of churches. और ये दूसरा और तीसरा अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का कलीसियाओं की परिस्थिति को दर्शाता है। 4th chapter speaks about the throne of God and heavenly beings there in heaven and their worship. और चौथा अध्याय परमेश्वर के अस्तित्व को और स्वर्ग में जो स्वर्गीय प्राणी और लोग हैं उनके बारे में दर्शाता है। In 4:11 we read that, oh, thou art worthy, O Lord, in this world there is none who is worthy. और चौथे अध्याय की 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा के समादर और शक्ति पाने के सुयोग्य है। So only one is the worthy, who is almighty, and then who deserves our worship because he is worthy. और एक ही परमेश्वर हम देखते हैं जो महिमा, आदर और सम्मान के योग्य है। He never demands from us saying, worship me, though I am unworthy. He is worthy and he is eligible for our worship, and we need to worship him. वो कभी नहीं कहता है कि मैं आराधना की योग्य नहीं हूँ, फिर भी मेरी आराधना करो, लेकिन वो इकलौता ऐसा है जो आराधना के योग्य है और हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। And then we need to worship him for our human cravity, because in the heart every man craves for God and the Creator, because in the world there is nothing to satisfy him except God. और हमें उसकी आराधना अपने पूरे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के लिए अंदर से प्यासा है। Now let's go to 5th chapter. और अभी हम 5वें अध्याय की ओर जाएंगे। Both the chapters, 4th and 5th chapters, are windows to heaven. और ये चौथा और 5वां अध्याय अगर हम पढ़ें तो ये स्वर्ग की और दिखाने वाली खिड़कियां हैं। And then 6th chapter will take us again to the earth. और फिर 6वां जो अध्याय है फिर से पृथ्वी की ओर हमें ले चलता है। Then 5th chapter, और 5वें अध्याय में very important, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, and reveals the blueprint for the future of the whole universe. और पूरे सृष्टि का जो भविष्य है उसके बारे में एक चित्र हमें वो दर्शाता है। 5th chapter verse 1 says, और 5वां अध्याय उसके पहली आयत कहती है, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. फिर मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान था उसके दाहिने हाथ में एक लपेटा हुआ चर्म पत्र, अर्थात एक ऐसी पुस्तक
जिसे लिखकर लपेट दिया था। So there is a book here. और यहाँ पर एक पुस्तक की ओर हम देखते हैं, And then this book is written both the sides. और ये जो पुस्तक है उसके दोनों ओर लिखावट है, Front side also it is written, other side also it is written. और उसकी आगे की बाजू में भी लिखा हुआ है, उसकी पिछली बाजू में भी लिखा हुआ है। And then it is also sealed with 7 seals. और हम देखते हैं कि 7 मुहर लगाकर उसे मुद्रित किया गया है। So it is not an ordinary book, but it is revealing the will of God. And then today we need to be very cautious to know what it is. और ये साधारण पुस्तक नहीं है, तो इस पे परमेश्वर की इच्छा है, और ये इच्छा जानने के लिए हमें थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है। What is the blueprint, or what is the will of God for the whole universe? तो ये सारी सृष्टि के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका चित्र हमें किस तरह से दिखाई देता है, And we need to know that, and that is there in that book. और ये हमें जानने की जरूरत है, वो उस पुस्तक में लिखा गया है। Now let's go to second verse. और दूसरे वचन की ओर हम जाएंगे। From second verse to fifth verse, there is a great need, and John is weeping bitterly. और हम दूसरे अध्याय से दूसरे वचन से 5 वचन की ओर देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी जरूरत हमें वहां पर दिखाई देती है, जिनके लिए खुद यूहन्ना भी रो रहा है। Verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? मैंने सर्वशक्तिशाली स्वर्गदूत की ओर देखा और दृढ़ स्वर से कहा, वो घोषणा कर रहा था, इस लपेटे हुए चर्म पत्रों की मोहरों को तोड़ने की और खोलने की सामर्थ कौन है? No, when I was in Dehradun, जब मैं देहरादून में था, so our students acted a drama or a skit on this book, and then how to then 7 seals of the book. और जो वहां पर मेरे जो विद्यार्थी थे, उन्होंने इस अध्याय पर छोटी सी नाटिका उन्होंने वहां पर दिखाई थी। They did a very good job. और बहुत अच्छा काम उन्होंने वहां पर किया था। Maybe now we have to reenact it. और शायद हमें फिर से उसे करने की जरूरत है। But we will go ahead to find out and then read and know and then see what is the book containing. और आगे चलकर हम देखेंगे कि इस पुस्तक में क्या है, किस चीजों के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, उसको हम अध्ययन करेंगे। But if you want to see something which is there inside, it has to be opened. और जब आप देखते हैं कि उस चीज में अगर कोई चीज, उस पुस्तक में अगर कोई चीज है, तो उसे खुलने की जरूरत है। Who will open this? तो उसे कौन खोलेगा? So here the great need is there. और यहाँ पे देखते हैं कि उसकी महान जरूरत हमें यहाँ पर दिखाई देती है। The strong angel is proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. और यहाँ पर एक स्वर्गदूत वहां पर घोषणा करते हुए दिखाई दे रहा है, और वो कह रहा है कि दृढ़ स्वर से घोषणा कर रहा था कि इस लपेटे हुए चर्म पत्रों की मुहरा को तोड़ने और खोलने के समर्थ कौन है? And then verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है, and no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. किंतु स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर या पाताल लोक में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लपेटे हुए चर्म पत्रों को खोले और उसके भीतर झाके। No, man is called as the crown of creation. और मनुष्य को सृष्टि का मुकुट कहा गया है। Man is supreme in the whole creation. God kept him as a supreme being. और सारी सृष्टि में सबसे उच्च स्थान परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। But in this verse, लेकिन इस वचन में it says, no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. और वचन कहता है, किंतु स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर या पाताल लोक में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो लपेटे हुए चर्म पत्र को खोले और उसके भीतर झांक सके। You know how drastic need was there. और हम देखते हैं कि कितनी बड़ी जरूरत यहाँ पर उसकी है। When I was a teenager, जब मैं अपने
तरुण या फिर मैं अपने जवानी की अवस्था में था, my pastor used to preach with tears about the perishing soul. और मेरे जो पादरी थे जो अश्रुपूर्ण नेत्र से प्रार्थना करते थे हर जवानों के लिए जो नाश हो रहे हैं। And then he used to preach about the soul, burden of the soul and how to win a soul. और वो संदेश देते थे कि किस तरह से आत्मा को जीता जाए। Now that entered into my heart. और वो चीज मेरे दिल में उतर गई। So I started preaching, I started praying and crying before God with fasting. और मैं परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ में रोता था। I'm never a preacher. मैं कभी भी कोई संदेश नहीं देता था। If you ask in my native place, they will witness that he used to go to the field and then cry from morning 6 to evening 6. या अगर आप मेरे जन्म स्थान पर जाकर अगर वहां पर पूछे तो लोग भी कहेंगे कि ये कभी संदेश नहीं देता था, लेकिन वहां पर खेतों में जाकर वो घंटों तक रोता रहता था। I used to withdraw from the people and then go to a solitary place where there was a lot of trees and then sit in the field and then pray morning 6 to evening 6. That was my fasting prayer. और मैं लोगों से अलग होकर या फिर अकेले में वहां पर किसी पेड़ के नीचे या खेतों में जाकर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उपवास और प्रार्थना करते हुए रोता था। And then I used to read chapters after chapters and then study the word day and night. और अध्यायों के बाद अध्याय करके मैं इस तरह से वचन को पढ़ता था और मैं सीखता था। Those days I didn't have any study Bible. और उन दिनों में मेरे पास किसी प्रकार का पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं था या फिर स्टडी बाइबल मेरे पास नहीं था। I didn't have the dictionaries or commentaries, nothing. और कोई डिक्शनरी या कमेंट्री मेरे पास कुछ भी नहीं था। I used to have only my mother tongue, Bible in my mother tongue, and I used to read it chapter by chapter. और मेरी मातृभाषा में लिखा हुआ मेरे पास उस पवित्र शास्त्र वो मेरे पास था और उसका अध्याय के बाद अध्याय में हमेशा अध्ययन करता था। Yesterday I was talking to a young man. और कल एक जवान से मैं बात कर रहा था। Both husband and wife were saying that they are spending more on cell phone and they are spending more on PUBG games and this and that. और वो दोनों कह रहे थे कि हम ज्यादातर वक्त हम फोन में अपने फोन में बिताते हैं या फिर पबजी खेलने में बिताते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं। Then I was asking, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, how many times you have read the Bible? आपने कितनी बार पवित्र शास्त्र को पढ़ा है? Did you read the Bible, whole Bible, at least one in your lifetime? और अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार तो आपने कभी पवित्र शास्त्र को पूरा पढ़ा है? How many chapters a day you read the Bible? और हर दिन आप पवित्र शास्त्र से कितने अध्याय पढ़ते हो? They don't have time to read the Bible. उनके पास वक्त ही नहीं कि वो पवित्र शास्त्र को पढ़े। But they have time to play games on mobile, and then they have time to play PUBG, which are demonic. And slowly, I told them, slowly it will make you psychic and addict of that, and then you will end in destruction. और लोगों के पास गेम खेलने में समय है, पबजी खेलने में समय है, जो निश्चित तौर से शैतान की ओर से आता है, जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, जो हमें एक मनोरुग्ण की अवस्था में ले जाता है और हमारे जीवन को नाश कर देता है। I told them take maximum time to study the scripture. और मैंने उनसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप समय दो कि आप परमेश्वर के वचन में रहो। I was reminding from Ephesians 5th chapter that redeem the time as the days are evil. और इफिसियों के मैं किताब से पत्र से मैं उनसे कह रहा था कि जो भी समय है वो परमेश्वर के साथ आप बिताओ। Submitting to one another, loving each other, and then obeying, and then moving on to glorify the name of God. और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अधीन होना, एक दूसरे के साथ रहना और एक मिलकर परमेश्वर की ओर बढ़ना। And then you will grow in the word of God. और आप निश्चित तौर से परमेश्वर में बढ़ोगे। If you don't grow in the word of God, you will not grow in your spiritual life. अगर आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते तो अपने आत्मिक जीवन में भी आप नहीं बढ़ सकते। And then you will never
be a person spiritually defeating Satan and satanic kingdom. और आत्मा की और आत्मिक जग में आप शैतान और शैतान के पूरे उसके सैन्य को आप उसको पीछे नहीं हटा सकते। Here it's a terrible thing and which affected John very much. That's why it says in verse 4, and I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. और इस बात से यूहन्ना को बहुत बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए 5वें अध्याय के 4थे वचन में वो कहता है, क्योंकि उस चर्म पत्र को खोलने की क्षमता रखने वाला या भीतर से उसे देखने की शक्ति रखने वाला नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सुबक सुबक के रो पड़ा। So he was weeping and weeping. He could not bear to see the need and how to meet the need. He was really craving. और ये जो जरूरत थी वो उसको सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो सुबक सुबक कर वहां पर रो रहा है और वो वहां पर देख रहा है कि वहां पर उसे खोलने वाला कोई भी नहीं है। Today may the grace of God empower you, energize you, and then force you to do the spiritual things. और परमेश्वर की कृपा पर उतर आए, आपको बहुतायत से उसको वो आपको भरे, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर के जो काम है, वो आपके जीवन से होने पाए। Let PUBG or let the cell phone should not be your master and then your guide, and then you should not be driven by them. और पबजी हो या सेलफोन हो, वो आपका गुरु या आपका धनी ना हो, तो वो जिसके द्वारा आप उसको जो आपको चलाए। As he was weeping and crying, something happened. और हम देखते हैं कि जब वो सुबक सुबक के रो रहा था, कुछ तो हुआ है। What happened in verse 5? और 5वीं आयत में क्या हो रहा है? It says, and one of the elders saith unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. फिर उन प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, रोना बंद कर, सुन, यहूदा के वंश का सिंह जो दाऊद का वंशज है विजयी हुआ है, वह इन 7 तारों मुहरों को तोड़ने और उस लपेटे हुए चर्म पत्रों को खोलने में समर्थ है। That is wonderful. और ये बहुत अद्भुत है। See, the elders, one of the elders is coming and talking to John, don't weep. और ये जो एक प्राचीन है, ये प्राचीन आकर यूहन्ना से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि यूहन्ना तू मत रो। Why? क्यों? Because you have one person worthy of opening the book. क्योंकि एक ही ऐसा व्यक्ति है जो उस चर्म पत्र को, किताब को खोलने में समर्थ है। Worthy, who can bring the whole future into the blueprint and then to the limelight. और एक ही है जो सारे भविष्य को उस जो चित्र है वो चित्र में दिखा सकता है। Who is that? और वो कौन है? Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book. यहूदा वंश का सिंह जो दाऊद का वंशज विजयी है, वह इन 7 तारों मुहरों को तोड़ने और लपेटे हुए चर्म पत्र को खोलने में समर्थ है। Who is that? और वो कौन है? That is Jesus और Christ. वो यीशु मसीह है। He is the only person who is worthy. और वो एक ही है जो उसको खोलने में समर्थ है। Worthy to open the book. और वही है जो उस किताब को खोल सकता है। Verse 6 says, 6वां वचन कहता and है, I behold, and lo, in the midst of the throne, and in the 4 bays, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. 6वां वचन कहता है, फिर मैंने देखा कि उस सिंहासन था, उन 4 प्राणियों के सामने और उन पूर्वजों की उपस्थिति में एक मेमना खड़ा था। वो ऐसे दिख रहा था मानो उसकी बलि चढ़ाई गई हो। उसके 7 सिंग थे, उसकी 7 आंखें थी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जिन्हें समूची पृथ्वी पर भेजा गया था। Wonderful, beloved. Here we see again a lamb who is in the midst.
और हम देखते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पर एक मेमना है। He is in the midst of the 24 elders, and in the midst of those beasts, and in the midst of the whole angelic being. और वो सारे स्वर्गदूत और 24 जो प्राचीन थे उनके बीच में एक मेमना भी हमें दिखाई देता है। It was looking like a slain lamb. और वो जैसे बलि चढ़ाया हुआ मेमना जैसे दिखाई देता है। Because he became slain, he became a redemption, he became a real Lamb of God who is going to be slain for you and my sin. क्योंकि सच में उसकी बलि चढ़ाई गई, उसे हमारे उद्धार के लिए उसने खुद को दे दिया। परमेश्वर ने उसकी बलि हमारे मेरे और आपके प्रति चढ़ाई। He became the true sacrifice and shed his blood to redeem us. और हमारे उद्धार के लिए वो एक सच्चा अर्पण बन गया। Then what is the other description about this lamb? और इस मेमने के लिए और कुछ चीजें क्या है फिर? This lamb is having 7 horns. हम देखते हैं ये जो मेमना है उसके 7 सिंग हैं And then 7 eyes. और 7 आंखें भी हैं। What is this? ये क्या है? We will not take now in this semester, but we will take up next semester. और ये इस सेमेस्टर में हम नहीं लेंगे, लेकिन अगला सेमेस्टर जब हम करेंगे उसमें इस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। It will be very interesting. और ये बहुत अद्भुत है। Take up and get ready for next semester to get admission. और अब तैयार होइए कि अगला सेमेस्टर जो शुरू होने जा रहा है उसमें आप एडमिशन लो। By the end of this month, we are finishing this semester. और इस महीने के अंत तक इस सेमेस्टर को हम खत्म कर रहे हैं। Next semester is coming soon, following that. But before that, start registering yourself and then start becoming and enrolling other friends also, that they may be in turn receiving more blessings. और आगे का जो सत्र है, जो सेमेस्टर है, वो जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए उसमें आप खुद का नाम दर्ज करने के लिए अब आप जल्दी करो। अपने मित्रगणों को आप बताओ, अपने आजू बाजू के लोगों को आप बताओ, ताकि इस वचन से हम एक साथ सीख सकते हैं। May the word of God come with all clarity and power, that he may touch each one of us and prepare ourselves, because the days are very evil, and then we do not know when the Lord is going to come. और हमें पता नहीं कि परमेश्वर कब आएगा, लेकिन उसके आने तक परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे और आए और स्पष्ट रूप से हमें छुए, हमें सिखाए और हमें पूर्ण करे, क्योंकि ये जो दिन है हमें पता नहीं कि परमेश्वर का द्वितीय आगमन कब होगा। No, the whole world is preparing for third world war. और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में लगी है। And then everybody is busy in purchasing weapons and equipping themselves and making their power more. And then they're uniting and trying to call other countries and then make a big issue of our world. और हम देखते हैं कि सारे जो देश है नए हथियार खुद की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को वो बुला रहे हैं और जो दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देने की तैयारी वो कर रहे हैं। Whoever you may be, you need to be prepared to the coming of the Lord, because it might take place tomorrow, it might take place today night, or it might take place day after tomorrow. और इसलिए आपको और हमें और मुझे परमेश्वर के लिए तैयार होने की जरूरत है, उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता नहीं शायद कल परमेश्वर का आगमन हो या शायद आज रात को वो आ सके। History is fasting, so moving very fast, and then wheels of history is moving very fast. We do not know when the last hour will come and when the rapture will take place. और इतिहास के जो पन्ने हैं, इतिहास की जो गाड़ी है, वो बहुत तेज तरह से दौड़ रही है और हमें पता नहीं कि यीशु का द्वितीय आगमन कब होगा और कब हम उठा लिए जाएंगे। May God help us to equip ourselves more and move on for His glory. इसलिए परमेश्वर हमें मदद करे कि उसके लिए हम और आगे चलते रहे। Now let's go to 5th chapter verse 7. और अब हम 5वें अध्याय के 7वें आयत की ओर जाएंगे। And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
फिर वो आया और जो सिंहासन पर विराजमान था उसके दाहिने हाथ से उसने वो लपेटा हुआ चर्म पत्र ले लिया। Yeah, in fourth chapter, beginning of the fourth chapter, we have seen about the throne and one who is sitting on the throne. और हम देखते हैं कि चौथे अध्याय की शुरुआत में हमने एक सिंहासन देखा और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। And then this book is in the hands of the one who is sitting on the throne. और हम देखते हैं कि जो सिंहासन पर विराजमान है उसके हाथ में ये किताब है। And then the person who wants to open it takes from the hand of him that is upon the throne. और उसने जो खोलने की उस किताब को खोलने में समर्थ है उसने जाकर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसके हाथ से इस किताब को लिया है। Again in this verse we see the mystery of Trinity. और यहाँ पर फिर से एक बार जो त्रैक परमेश्वर हमारा जो है उसकी रहस्य को हम देख सकते हैं। One who is sitting on the throne, जो एक जो सिंहासन पर बैठा है, and then one who is taking the book from his hand, और जो एक है जो उसने जिसने उसके हाथ से उस किताब को लिया। different persons, अलग अलग व्यक्ति हैं, but at the same time they are one. लेकिन उसी समय वो एक भी हैं। Very mysterious character. और एक रहस्यपूर्ण चरित्र ये है। If this mystery has to appeal to our mind, it will not appeal. So we have to accept it by faith, and we have to move on and rejoicing in the truth of Trinity and seeing different persons in Trinity. और अगर इस त्रैकता को अगर हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें जैसा उसे है हमें उसको स्वीकार करना है, उसकी आराधना करनी है। And then verse 5:8 says, और 5वां अध्याय और 8वां वचन कहता है, and when he had taken the book, the 4 bays and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. और 8वां वचन कहता है, जब उसने लपेटा हुआ चर्म पत्र ले लिया तो उन 4 प्राणियों तथा 24 प्राचीनों ने उस मेमने को दंडवत प्रणाम किया। उनमें से हर एक के पास वीणा तथा वे सुगंधित सामग्री से भरे हुए धूपदान थे, जो संतों की प्रार्थनाएं हैं। Beloved, we read again the picture of the heaven here. और यहाँ पर फिर से एक बार स्वर्ग का चित्र हमें दिखाई देता है। There are bees, 4 bays and 24 elders falling down before the Lamb. हम देखते हैं कि ये 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस सिंहासन के सामने दंडवत कर रहे हैं। They are having harps in their hand. उनके हाथ में वीणाएं हैं। You know, there are people who don't use music. और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें संगीत पसंद नहीं है। And Bible, they argue saying there is no record that the church has sang. और वो इस बात से हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं कि हाँ ये कैसे कहाँ पर लिखा गया है कि कलीसिया में गीत गाना चाहिए। And then they will also argue saying all these musical instruments you have to stop. और ये हमेशा उस बात को आर्ग्यू करते रहते हैं कि ये जो सारे संगीत बजाने वाले जो माध्यम है उन्हें भी हमें बंद कर देना चाहिए। Beloved, here in 8th verse, यहाँ पर 8वें वचन में हम देखते हैं 4 bays and 24 elders are full of harps. हम देखते हैं कि वो 4 प्राणी और 24 प्राचीन उनके हाथ में वीणाएं हैं। What is that? ये क्या है? They are really rejoicing in the presence of God with harps and then with music. और ये जो है वो परमेश्वर के सानिध्य में पूरे दिल से सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Then we also see the golden vials full of odors. हम देखते हैं और ये सुगंधित सामग्री से भरे हुए सोने के धूपदान हैं। What is this full of odor? और ये जो है ये सोने के धूपदान क्या है? It says that they are the prayers of the saints. और ये वचन कहता है कि ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। Dear beloved, dear pastor, dear believer, whoever you are hearing this voice, if your prayer is not answered, be sure that your prayer is recorded and the Lord is going to answer it. और प्रियो परमेश्वर के सेवक जनों, अगर आप ये बात को सुन रहे हैं तो आप जान लीजिए अगर आपकी प्रार्थनाएं अगर वहां पर सुनी नहीं जा रही है
तो इस बात को आप विश्वास रखें कि उस प्रार्थना को वहां पर लिखा गया है। It is going like an order into the presence of God. और परमेश्वर के सामने एक धूप के समान वो प्रार्थनाएं जाती हैं। Like a perfume, it is going into the presence of God. और सुगंधित सामग्री की तरह परमेश्वर के सानिध्य में उस प्रार्थना ये प्रार्थना जाती है। Your prayers are so precious and it is valid in heaven, and then it will definitely be answered and you will see great things happening through your prayer. और परमेश्वर के सानिध्य में वो प्रार्थना जाती है। परमेश्वर के सानिध्य में उस प्रार्थना को बड़ा महत्व है और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। So let us be encouraged in whatever the situation you are in. और इसलिए जो भी परिस्थिति में आप हो उसमें खुद को उत्तेजित रखिए। Maybe you are not happy with your own life. शायद आप हो सकता है कि अपने जीवन से आप खुश ना हो। Maybe you are not happy with your family life. और शायद आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा आप खुश ना हो। Maybe you are not happy with the church life. और शायद आपकी कलीसिया के जीवन से आप खुश ना हो। But definitely the Lord values your prayers and answers your prayers, and there is going to be a mighty revival, and let us expect from the Lord, and may God bless you and use you mightily. लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में आपकी प्रार्थनाओं का महत्व है। परमेश्वर उसे सुनने जा रहा है। परमेश्वर उसकी महिमा के लिए उसको आपको एक आशीष का कारण बनाएगा। Commit yourselves once again into the hands of God. फिर से एक बार खुद का समर्पण परमेश्वर के हाथों में कीजिए। God is going to do mighty things through you. और आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को करेगा। Your prayers will shake, and then your prayers will control the whole world's situation and glorify the name of God. और आपकी जो प्रार्थनाएं हैं पूरी दुनिया की परिस्थिति को वो संभालेंगे और परमेश्वर के नाम को उसके द्वारा महिमा मिलेगी। May God be with you. May God bless you. परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर के द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brother Newton Philip is already waiting eagerly to bring God's word like a king's pen ready to write. और पास्टर न्यूटन हमारे साथ है वो अदिता के साथ वहां पर वो परमेश्वर के वचन को देने के लिए जैसे एक राजा का पेन लिखने के लिए तैयार होता है उस तरह से वो तैयार बैठे हैं। Pray for their ministry in Chennai. और चेन्नई में उनकी जो सेवक आए हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए। Pray for his wife who is not feeling well, but God has grace upon their family and leading them. और उनकी पत्नी के लिए आप प्रार्थना करें जो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी कृपा उनके परिवार पे हमेशा बरसाए रखे। Shall we close our eyes and look God in prayer? आइए अपने आंखों को हम बंद करें और प्रार्थना में हम जाएं। Father, we thank you for this day. परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word which came with all authority and clarity. और प्रभु आपका वचन पूरे अधिकार से और स्पष्ट रूप से हमारे पास आया है इसलिए धन्यवाद। We pray that you may continue to lead us and guide us and glorify your name, energize us, and then inspire us that we may become more effective for your glory. और प्रभु आपकी महिमा के लिए आप हमें अभिषिक्त कीजिए। प्रभु आप हमें प्रभु सामर्थ्य से भरिए, हमें उत्तेजित कीजिए ताकि आपके हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो। Touch everyone for your glory. और हर एक को आपके महिमा के लिए आप छुइए प्रभु। Bless them, Lord. और उन्हें आशीषित कीजिए। Use them mightily. और महान सामर्थ्य से उसको आप उनको अपने सेवकाई के लिए आपको उपयोग में लाइए। We thank you for Brother Newton Philip. हम बंधु न्यूटन फिलिप के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। As he brings the word from synoptic gospels, we would like to see mighty outpouring, and then we would like to see each of us being blessed by the ministry of the word. हम प्रार्थना करते हैं कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल के द्वारा जो आपका वचन वो हमारे पास ला रहे हैं प्रभु, हर एक को उसके द्वारा आप छुइए और हर एक को उसके द्वारा आप आशीषित कीजिए। Continue to glorify your name. और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से सदा हो। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के द्वारा इस प्रार्थना विनती को हम पिता की ओर मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। May God's grace be upon you, and may God's grace continue to haunt you. परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और वो आपके साथ Please continue to pray for us.
और कृपा करके हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। If you are blessed by these programs, please share it to at least one friend. और इस कार्यक्रम के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा अगर आप सच में आशीषित हो रहे हो तो आपके कम से कम एक मित्र को आप बताइए। Try to enroll them for next program which will start from next month. और अगले महीने से जो अगला उसका भाग शुरू होने जा रहा है उसके लिए उन्हें आने के लिए, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। We have more revelations to share it with you and you can in turn share it to others. और कोई रहस्य हमारे साथ हमारे पास है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आप और आपके मित्रगण भी उसको सीख सके। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May God's grace continue to haunt you. और परमेश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। Amen. आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। और आगे का समय जो है हम वक्त ना बिताते हुए मैं पास्टर न्यूटन के हाथ में देना चाहता हूं। सो पास्टर न्यूटन, यू कैन लीड प्लीज। या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ पास्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. Are you able to hear me? Yes, Pastor. Thank you. Yes. Well, it's again a good opportunity and once again. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और फिर एक बार मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। And may God minister to us continually as we study. और जब हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं वो निरंतर हमें चलाएगा। Hope that you all are doing well in this pandemic season. मैं आशा करता हूँ कि इस पेंडेमिक समय में आप लोग सब भले चंगे हैं। And many of Christian ministers and many of our friends are in Chennai. Most of the friends here of my friends are suffering here in Chennai with the COVID-19. मेरे मित्र है जो चेन्नई में रहते हैं वो कोविड-19 से ग्रसित है। A few friends, not only one friend. A few friends of mine are undergoing COVID and they are in the hospital. And please uphold them in your prayers. Some of them are very old, 80 plus in their age. So God should intervene and heal them. और मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो जिनकी उम्र 80 साल की है, वो इन दिनों में कोविड-19 के इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप उन्हें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में रखें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे सके। Well, let's come to the subject, and we are studying about the secrets, the servant's secrets. और आइए हम सीधे अपने विषय की ओर जाएं। हम देख रहे थे कि सेवक का रहस्य, which is found in Mark chapter 8 verse 27 to chapter 9 verse 50. और हम उसको देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से लेके अध्याय 9 27 वचन तक। 8:27 to 9:50. Okay, 8:27 to 9:50. Yeah. So here we see the suffering leads to glory. और हम देखते हैं कि पीड़ा महिमा की ओर अग्रसर करती है। Mark chapter 8 verses 27 up to chapter 9 verse 13. और मरकुस अध्याय 8 27 वचन से लेके मरकुस अध्याय 9 उसके 13 वचन तक। Then underneath we have studied confession. और उसके बीच में हमने अध्ययन किया अंगीकार के विषय में। Jesus asked his disciples what they feel about him. और यीशु ने अपने चेलों को पूछा कि वो उसके विषय में क्या महसूस करते हैं। And before that he asked them what people talk about him. उसके पहले उसने उनसे पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं।
Well, what people think about us is not much important to us. लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, But what people think about Jesus is more important. लेकिन लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, Or because he is the Son of God and the only Savior of sinners. क्योंकि वही परमेश्वर का पुत्र है और वही पापियों का उद्धार करता है। You know, your confession regarding Jesus is a matter of life and death. क्योंकि हमारा जो अंगीकार है वो हमारे जीवन में मृत्यु से संबंध रखता है। In the notes, it speaks about confusion. It is not confusion, it is confession. और नोट्स में आपको देखेगा कंफ्यूजन। Before confusion, there is a title called confession. और पहला जो हेडिंग है सफरिंग लीड्स टू ग्लोरी, दूसरा है कन्फेशन, और कन्फेशन के बाद है कंफ्यूजन। आप अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिए। Yeah, please. Confession. सफरिंग के बाद कन्फेशन है, आप कन्फेशन लिखिए पहले। CONFESSION, confession. कन्फेशन मतलब अंगीकार, अंगीकार लिखना है आपको। So Jesus very much wanted the confession of his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के अंगीकार को चाहते थे। The citizens of Caesarea Philippi, they would say Caesar is Lord. और कैसरिया फिलिप्पी के जो नागरिक है वो कहते थे कि यीशु प्रभु है, कैसर प्रभु है। That will identify them with the Roman citizens. ताकि वो रोमी नागरिकता के से अपना मेल करा ले। But that would never save them from their sins. लेकिन वो उन्हें उनके पापों से नहीं बचा सकता था। That would never save them from eternal hell. और ये ना ही उन्हें अनंतकालिक आग से बचा सकता था। The only statement that will save us is Jesus is Lord. और केवल यह वाक्य कि यीशु ही प्रभु है ये उन्हें बचा सकता था। When that confession comes from the heart, when the heart truly, the heart from a true believer, that really saves him. और जो अंगीकार एक सच्चे हृदय से, एक विश्वासी के हृदय से जब निकलता है वही उसे उद्धार देता है। People had different opinions about Jesus in those days. उन दिनों में यीशु के विषय में लोगों के अलग-अलग विचारधाराएं थी। Well, probably the same thing happens even today. और आज भी ये बातें हमको देखने को मिलती है। Some thought he was John the Baptist. कुछ विचार कर रहे थे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। And some had a confusion because they saw John the Baptist and Jesus together in the public domain. और कुछ लोग ऐसा इसलिए कहते थे कि यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के बीच में रहता था, इस वजह से वो ये कहते थे। So they were having confusion because they saw Jesus Christ as well as John the Baptist together on the banks of Jordan. हाँ, उनके मन में इसीलिए गड़बड़ी थी क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु दोनों को जो है वह गलील की झील के पास देखा था। Well, different people have a lot of confusion about him. और अलग-अलग लोगों के मन में अलग-अलग गड़बड़ियां उत्पन्न हुई थी। Well, Jesus very much wanted his disciples to know him and to comment on him. और यीशु चाहते थे कि यीशु के चेले उसे अच्छी तरीके से जाने और उसके विषय में वो कुछ कहें। The second thing is confusion. और कन्फेशन के बाद आता है कंफ्यूजन अर्थात गड़बड़ी। Verses 31 to 38.
वचन 31 से वचन 38 तक। Well, now they had confessed their faith in Christ. उन्होंने अपने मसीह पर अपने अंगीकार को किया। But if you see John chapter 6 verses 67 to 71, जब हम यूहन्ना उसके अध्याय 6 उसके 60 वचन से लेके 61 वचन में देखते हैं, 66 to 71. ओके 66 से लेके 67 71 वचन तक जब हम देखते हैं, Thank you. The disciples were ready for a secret that Jesus wanted to share with them. और यीशु के चेले तैयार थे उस रहस्य को जानने के लिए जिसे यीशु उन्हें बताना चाहता था। He was going with them to Jerusalem where he would die on the cross. वो उनके साथ यरूशलेम जा रहा था जहाँ पे उसे क्रूस पर मरना था। Well, from this point, Mark will focus on the journey to Jerusalem. और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि मरकुस जो है पॉइंट करता है उसकी यात्रा जो यरूशलेम की ओर हो रही थी उसके विषय में। And the emphasis will be on Jesus approaching the death and resurrection. और उसका जो ध्यान केंद्रित करने का जो मकसद था वो ये था कि यीशु के मारे जाने और जी उठने के ऊपर। Mark 9:30 to 32. मरकुस 9:30 से लेके 32 वचन। And then chapter 10:32 to 34. और मरकुस अध्याय 10:30 से लेके 34 वचन। This announcement had stunned the disciples. और इस घोषणा ने चेलों को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया। Well, if he is indeed Christ of God, as they had confessed, then why would he be rejected by the religious leaders? निश्चय ही वह मसीह और उसका अंगीकार किया गया, लेकिन फिर भी जो धार्मिक अगुवे थे उनके द्वारा क्यों उसका इनकार किया गया? Why would these leaders crucify him? क्यों धार्मिक अगुवों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया? Did not the Old Testament scriptures promise that a Messiah would defeat all their enemies and establish a glorious kingdom for Israel? और पुराना नियम किसी भी रीति से इस विषय में नहीं बताता कि मसीहा जब आएगा तो सबको पराजित करेगा और इस पृथ्वी पर वह एक महिमा में राज्य की स्थापना करेगा। Well, the Old Testament speaks about it. पुराना नियम इसके विषय में बात करता है। The disciples had question now. What about this Messiah who died? लेकिन ये कौन सा मसीहा है जो मरने वाला है? There is something wrong somewhere. कहीं तो भी कुछ गलत हो रहा था। And the disciples were confused. और इसी कारण से चेलों के मन में एक गड़बड़ी थी। It was Peter who expressed their concern to Jesus. और पतरस ने अपनी मनसा को प्रकट किया वहां पर। Peter was led by God to confess his faith in Jesus Christ in Matthew chapter 16 and verse 17. और मत्ती अध्याय 16 उसके 17 वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर पतरस ने यीशु का अंगीकार किया। And the next minute he was thinking like an unbelieving man and expressing the thoughts of Satan. लेकिन उसी के कुछ क्षण बाद वह एक ऐसे व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा था जो अविश्वासी है और शैतान की बातों पर मन लगा रहा था।
This is a warning to us that when we argue with God's word, we open the door for Satan's lies. और ये हमारे लिए एक सचेत रहने का सुझाव है या हमारे लिए एक सावधानी बरतने की बात है कि परमेश्वर के वचन को जब हम प्राप्त करते हैं और यदि हम उसको लाइटली लेते हैं तो हमारे लिए मार्ग खुल सकते हैं कि शैतान उसमें प्रवेश कर पाए, शैतान के झूठ के लिए। Peter began rebuking his master. और पतरस यीशु को झिड़कने लगा, अपने स्वामी को झिड़कने लगा। And Mark used the same word that describes our Lord's rebuking of demons. और इसी बात को मरकुस ने अपने इसमें दर्ज किया, जिस प्रकार प्रभु दुष्ट आत्माओं को झिड़कता है। Mark chapter 1 verse 25. मरकुस अध्याय 1 उसका 25 वचन, 3:12. 3:12। Peter's protest was born out of the ignorance of God's will. और पतरस का विरोध करना इस कारण था क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था। Peter was a rock and the next minute he was a stumbling block. एक समय में पतरस चट्टान था और कुछ ही क्षणों के बाद वह ठोकर का पत्थर बन गया। The man who loves Jesus, वो व्यक्ति जो यीशु से प्यार करता था, but who shuns God's method, the one who stops God's method is a stumbling block to him. लेकिन जो परमेश्वर की प्रक्रिया के लिए बाधा बनता है वह एक बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति होता है। Peter did not understand the relationship between suffering and glory. और पतरस दुख या पीड़ा और महिमा के बीच में जो अंतर है उसको नहीं समझ पाया। Therefore, Jesus had to rebuke Peter. और इसीलिए यीशु को पतरस को झिड़कना पड़ा। He also looked at the disciples. और उसने चेलों की ओर भी देखा, because they all agreed with the assessment of Peter. क्योंकि वे सब पतरस के कहे हुए वाक्य से सहमत थे। They all, went into the Jewish traditional interpretation. They were unable to understand how their Messiah would suffer and die. और यहूदियों के द्वारा कहे गए कथन पर वह सहमत थे और वो ये सोचने लगे कि कैसे एक मसीहा मर सकता है। To be sure, the prophets had written about Messiah's suffering, but much more he had written about Messiah's glory. भले ही भविष्य वक्ताओं ने मसीहा के पीड़ा के विषय में लिखा, लेकिन उससे अधिक उन्होंने उसकी महिमा के विषय में भी लिखा है। Some of the rabbis in those days, they even taught that there were two messiahs, the one who would suffer and one who would reign or rule. और उस समय में जो गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इस प्रकार से भी सिखाया था कि एक मसीहा वो होगा जो पीड़ा को सहेगा और एक मसीहा वो होगा जो महिमा के साथ राज्य करेगा। That is no wonder the disciples would also were confused. और इसी कारण से चेले भी गड़बड़ी में या दुविधा में थे। But the problem was more than theological. It was very practical. लेकिन जो समस्या थी वह सैद्धांतिक रूप से नहीं थी, लेकिन वह व्यवहारिक तरीके से थी। Jesus called these men to follow him, and they knew that whatever happened to him would happen to them.
और यीशु ने जब इन लोगों को अपने पीछे हो लेने को कहा तो वे ये जानते थे कि जो कुछ उसके साथ होगा वो उनके साथ भी होगा। If there was a cross in his future, there would be one in their future as well. यदि उसके वर्तमान में या उसके भविष्य में क्रूस है तो आने वाले दिनों में उनके जीवन में भी, उनके भविष्य में भी क्रूस होगा। That would be the reason enough to disagree with him. तो यही वो कारण हो सकता है कि वो उसके साथ सहमत नहीं हुए थे। Well, in spite of their devotion to him, the disciples were still ignorant of the true relationship between the cross and the crown. और क्रूस और मुकुट के बीच में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। Well, the disciples were ignorant to know the relationship between the cross and the crown. और चेले इस बात से अनजान थे कि दुख और महिमा के बीच में जो अंतर है, Glory without suffering. बिना पीड़ा की महिमा। Philosophy of Satan. शैतान की फिलोसॉफी। What is Satan's मन गलत philosophy? बातें। What is Satan's philosophy? क्या है शैतान की मनगढ़ंत बातें? Glory without suffering. उसकी जो मनगढ़ंत बातें वो ये हैं कि बिना पीड़ा की महिमा। What is God's philosophy? और परमेश्वर का कथन क्या है? Suffering transformed into glory. कि पीड़ा महिमा को उत्पन्न करती हैं। Which philosophy you accept will determine किस how you प्रकार live. के किस प्रकार की फिलोसॉफी को आप स्वीकार करेंगे जिससे आपके Yeah. It will determine how you live and how you serve. और इससे ये साबित होगा कि आप किस तरीके से जिएंगे और किस तरीके से उसकी सेवा करेंगे। Jesus taught his disciples there is a price to pay for the true discipleship. और यीशु ने अपने चेले को सिखाया कि चेले होने की कीमत चुकाना होगा। And he laid 3 conditions for true discipleship. और उसने 3 ऐसी शर्त को एक सच्चे चेले बनने के लिए उनके सामने में रखी। Number 1. पहला, We must surrender ourselves completely to him. हमें उसको संपूर्ण रीति से समर्पित करना है। Number 2. दूसरा, We must surrender ourselves completely. We must identify with him in suffering and death. और हमने उसकी पीड़ा और मृत्यु के साथ सहमत होना है। Number 3. तीसरा, We must follow him obediently wherever he leads. और हमें उसके पीछे चलना है लगातार, जहां कहीं भी वो हमारी अगुवाई करे। Denying self is not the same as self-denial. और स्वयं का इनकार करना ऐसा नहीं है कि मैंने वहां ऊपरी रूप से इनकार किया। Denying self, you deny yourself is not Yes. as same as self-denial. स्वयं का इनकार करना यानी ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपरी रीति से इनकार किया। We practice self-denial for a good purpose.
लेकिन हम स्वयं का इनकार इसका व्यवहारिक रूप में जो इस्तेमाल करते हैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए। Sometimes we give up certain things, sometimes activities, और कुछ बातों को हम छोड़ देते हैं, कुछ कार्यों को हम नहीं करते। but we deny self when we surrender ourselves to Christ and determine to obey His will. लेकिन हम स्वयं का इनकार तब करते हैं जब हम उसके इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं को पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। Discipleship is a matter of profit and loss. क्योंकि चेले बनने का जो दाम है वो नफा और नुकसान का है। A question of whether we will waste our lives or invest our lives. तो प्रश्न इस प्रकार से है कि क्या मैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूं या मैं अपने जीवन में लाभ को देख रहा हूं। A warning given by Jesus is, very clear here. और यहाँ पे स्पष्ट रूप से यीशु के द्वारा एक चेतावनी दी गई। Once we have spent our lives, we cannot buy them back. Remember that. इस बात को याद रखें, जब हम अपने जीवन को खर्च कर देते हैं हम उसे फिर खरीद नहीं सकते। He was instructing his disciples, men who had already confessed him as the Son of God. He was instructing his disciples, men who had already confessed him as the Son of God. और यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने चेलों को पहले ही बता दिया था, जिन मनुष्यों ने उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में अंगीकार किया था। Well, he was not telling them how to be saved and go to heaven. और उसने ये नहीं बताया था कि किस रीति से उनको उद्धार पाना है। But he was saying how to save their lives and make the most of their opportunities on earth. लेकिन उसने बताया था कि किस रीति से तुम जो बचाए गए हो, तुमने अपना जीवन जो है हर मौके में उसका इस्तेमाल करना है उसकी महिमा के लिए इस संसार में। Losing your soul is an equivalent of wasting your life. और अपने प्राण को खो देना इसका अर्थ है कि अपने जीवन को बर्बाद कर देना। Missing the great opportunities God gives you to make your life count. और ये देख रहा है कि परमेश्वर बड़े बड़े मौके देगा जिससे आपके जीवन में एक गणना होगी। You may gain the whole world. तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो And be a success in the eyes of men. और मनुष्य की नजर में बड़े सफल व्यक्ति बन जाओ। Yet nothing to show when you stand before God. लेकिन फिर भी जब तुम परमेश्वर के सामने में खड़े रहोगे, तुम्हें उसको दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। If that happens, यदि ऐसा हो जाए तो, though you did not own the whole world, though you had the whole world in your hand, यद्यपि तुमने पूरे संसार को अपने हाथों में अपने वश में कर लिया, it would not be a sufficient praise to give to God to buy another chance in life. तो परमेश्वर के सामने में पर्याप्त नहीं होगा कि फिर से अपने जीवन को परमेश्वर के पास प्राप्त कर सको। Is there any reward for a person who is a true disciple? क्या यदि कोई एक सच्चा चेला है तो उसके लिए कोई प्रतिफल है क्या? Yes, there is. हाँ है। He becomes more like Jesus. वह
यीशु जैसा अधिक उसकी समानता में हो जाता है, and one day he shares God's glory. और एक दिन वह परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेगा। Satan promises you glory, सैतान महिमा की प्रतिज्ञा करता है, but in the end you receive suffering. लेकिन अंत में आप उससे पीड़ा को प्राप्त करते हैं। God promises you suffering, परमेश्वर आपसे पीड़ा की प्रतिज्ञा करता है, but in the end that suffering is transformed into glory. Hallelujah. लेकिन अंत में वो पीड़ा या वो दुख आपके लिए महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। The third thing that we going to study is confirmation. और हमने तीसरा जो हमने जो देखा वो है अंगीकार। And that is also not found in your notes. Please write beneath, underneath confusion. और आप कंफ्यूजन के बाद कन्फेशन को लिखिए। Confirmation. कन्फेशन, Confirmation. खातरी, CONFIRMATION, confirmation. Okay. Sir, after suffering, there was a confession. Confession, right? confusion, Then, and and confirmation. confirmation. Yes. Okay, okay. कंफ्यूजन के बाद, माफ कीजिए, कंफ्यूजन के बाद कंफर्मेशन लिखिए, खातरी। Faith to accept and practice this lesson on discipleship. और हमें आवश्यक है कि हम इस चेले की इस शिक्षाओं के ऊपर व्यवहारिक रीति से कार्य करें, इसे स्वीकार करें। If you turn your Bibles to chapter 9 verses 1 to 8. यदि आप अध्याय 9 उसके वचन 1 से लेकर 8 तक, 8 तक देखें, you will see 6 days later, 6 days later, the Lord gave dazzling proof that God indeed does transform suffering into glory. और 6 दिन के बाद यीशु ने अपने एक प्रमाण दिया कि किस रीति से पीड़ा महिमा की ओर अग्रसर करती है। He took Peter, James and John to the top of the mountain. उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ एक पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। Maybe the mountain could be Mount Hermon. और वो माउंट हरमन हो सकता है। And there he revealed his glory. और वहां पे उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। This event was a vivid confirmation of his words as recorded in. और ये जो उसकी महिमा के विषय में दर्ज किया गया था वचनों में, उसका वो पुरावा वो देना चाह रहा था। Mark 8:38. मरकुस 8 उसका 38 वचन। It also demonstrates the glory of the future kingdom. It was also a demonstration of his glory, the future kingdom. और ये उसके आने वाले भविष्य के विषय में उसकी महिमा का एक प्रकटीकरण था। 9:1, Mark 9:1. मरकुस 9 उसका 1 वचन। The message was clear. और संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। First the suffering, then the glory. पहले दुख, उसके बाद महिमा।
John 1:14. यूहन्ना 1:14, 2 Peter chapter 1, 12 to 21. और पहला पत्रस अध्याय 1 12 वचन से लेके 21 वचन तक। 2 Peter. दूसरा पत्रस 12 अध्याय 1 12 वचन से लेके 21 वचन तक. 21 वचन तक। Moses represented the law and Elijah the prophets. और मूसा ने प्रकट किया व्यवस्था, एलिया और नबियों को, Both of which find their fulfillment in Jesus Christ. और ये दोनों की जो परिपूर्णता थी वो यीशु मसीह में पूरी हुई। Luke 24, 25 to 27. और लूका 24 अध्याय और उसका 24 वचन से लेके 27 वचन तक, तो 25 वचन से लेके 27 वचन तक। Thank you. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. इब्रानियों अध्याय 1 1 और 2 वचन। Moses had died and his body was buried. मूसा मरा और वो कब्र में दफन किया गया। But Elijah had been raptured to heaven. लेकिन एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया। 2 Kings chapter 2, verse 11. दूसरा राजा उसका अध्याय Chapter 2. दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। When Jesus returns, he will raise the bodies of the saints who died and will rapture. जब यीशु गुप्त आगमन में आएगा तब जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और उसके साथ वो उठा लिए जाएंगे। He will raise the bodies of the saints who died and will rapture. और वो उन संतों the living saints. यीशु संत yes yeah. Let me do simple yes form. yes He will raise the bodies of the saints who died. यीशु अपने संतों की जो मर चुके हैं उनको जिलाएगा। And he will rapture the living saints. और जो जीवित हुए संत हो गए उनको वो उठा ले जाएगा। 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीय अध्याय 4 13 to 18. 13 से लेके 18 वचन। Jesus will one day establish his glorious kingdom. एक दिन यीशु अपने महिमा में राज्य की स्थापना करेगा। And he will fulfill many promises made to prophets. और जो प्रतिज्ञा उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा की उसे वो पूर्ण करेगा। Christ's suffering and death would not prevent God from establishing his kingdom. और दुख पीड़ा उसको कभी भी नहीं रोक पाएगी कि वो अपने राज्य की स्थापना कर सके। Rather, by solving the sin problem in God's word. और पाप की जो समस्या है परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे वो सुलझाएगा। The cross would help to make the kingdom possible. और क्रूस ही राज्य को स्थापित करने के लिए कारीगर साबित होगा। The word transfigured describes a change on the outside that comes from the inside. और रूपांतर का जो अर्थ होता है वो है कि बाहरी बदलाव जो अंदर है उसको बाहर प्रकट करना। Let me repeat again.
The word transfigured describes a change on the outside that comes from the inside. और रूपांतर का अर्थ ये होता है कि जो बदलाव भीतर में पाया जाता है वह बाहरी रूप में प्रकट होता है. As you meditate on this event, keep in mind that he has shared this glory with us and promised us a glorious home forever. और जब आप इस घटना के ऊपर मनन करते तो इस बात को याद रखिए कि उसने अपने महिमा में रूपांतर को हम पर प्रकट किया है और उसकी जो महिमा हमेशा के लिए बनी हुई है. John 17:22-24. यूहन्ना अध्याय 17-22 वचन से लेकर 24 वचन. According to Romans chapter 12 verses 1 and 2. रोमियो अध्याय 12:1 से लेकर 2 वचन के अनुसार. 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन के अनुसार. Believers today can experience same transfiguration glory. विश्वासी आज की परिस्थिति में भी उसी महिमा का अनुभव कर सकते हैं. நீ பேசி சொல்லிடுறேன் கிளாஸ்ல sorry. It's okay. The three disciples had gone to sleep while Jesus was praying. The three disciples had gone to sleep while Jesus was praying. जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जा रहा था उस समय में उसके 3 चेले थे, वो सो रहे थे. Luke 9:29. लूका 9 उसका 29 वचन. Luke 9:32. लूका उसका 9 उसका 32 वचन. A failure they would repeat in the Garden of Gethsemane. और असफलता गत्सेमनी के बाग में उनको असफलता के कारण गत्सेमनी के बाग में वो हार गए. Well, I'll take only 2 minutes. I have an agenda. Yes. Okay. Just be online. I'll just.
Sorry. A failure that would repeat in the Garden of Gethsemane. और हम देखते हैं कि एक असफलता हमें गत्सेमने के बाग में देखने को मिली। Mark 14:32 to 42. मरकुस 14 उसका 42 वचन। They almost missed serving Moses and Elijah. और उन्होंने They almost मूसा और एलिया seeing Moses and Elijah. उन्होंने मूसा और एलिया को देखा था। No, they almost seeing Moses and Elijah. They have seen, no? Well, I'm just coming to the later part. Okay. Yeah. Actually, sir, sometime in the words, the connection goes break. Okay. Yeah. They almost, they missed seeing Moses and Elijah and Jesus in his glory. मूसा, एलिया और यीशु मसीह को महिमा में जो उन्होंने देखा था, उस चीज को वो खो दिए थे। That's the right thing. Peter suggested. Yeah. Suggestion reflects again human thinking. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस सुझाव देता है, उसके विचार यहाँ पे प्रकट होते हैं। It is a human thinking, not the divine wisdom. और ये जो उसके अपने विचार थे, ये कोई परमेश्वर बुद्धि नहीं थी। Well, indeed, they saw these three people, but not in their glory. But they wanted to have them in human nature, and they wanted to stay with them. And that is the interpretation I would like to give. Yes. Actually, भले ही उन्होंने उन तीनों को महिमा में देखा था, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये तीनों उनके साथ शारीरिक रूप में आकर उनके साथ रहे। They thought how wonderful it would be to stay on the mountain top. और उन्होंने ऐसा सोचा कि कितनी भली बात होगी कि इस पहाड़ पर सुंदर रीति से रहे। But discipleship means denying self and taking up the cross. लेकिन चेले होने का अर्थ ये होता है स्वयं का इनकार करते हुए क्रूस को उठाना। And to follow him. और उसके पीछे चलना। You cannot do that if you selfishly stay on the mountain top. यदि आप स्वार्थपूर्ण विचारों से यदि पहाड़ पर यदि आप रहेंगे तो आप इसको कभी नहीं कर पाएंगे। And if you stay on the mountain of glory, you cannot have that experience. और यदि आप महिमा के उस पहाड़ पर रहेंगे तो आपके पास वो अनुभव कहाँ होगा? There are needs to be met in the valley below. क्योंकि कुछ ऐसी जो बातें होती है जिसको हासिल करना होता है जो तराई में मिलती है। If we want to share the glory of Christ on the mountain top, यदि आप उस महिमा को उस पहाड़ पर प्रकट करना चाहते हैं, we must be willing to follow him into the sufferings of the valley below. तो हमने अपने स्वयं की इच्छा से जो है उस तराई के निचले स्तर पर रहकर हमें पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार होना होगा। The father interrupted Peter's speech. और पिता ने पतरस के उस बातचीत में एक उसको का तो पिता ने पतरस की बातचीत को वहीं पे रोका। The father wanted to focus their attention not on the vision but God. और पिता का जो ये दृष्टिकोण था या उसकी जो इच्छा थी कि दर्शन के ऊपर उनका ध्यान न होते हुए परमेश्वर की ओर उनका ध्यान हो। Hear him. उसकी सुनो।
The memory of visions will fade. और दर्शन, याददाश्त में जो दर्शन है वो जाते रहेंगे, But the unchanging word abides. लेकिन कभी न बदलने वाला वचन वह कभी खत्म नहीं होगा. The glorious vision was not an end in itself. It was God's way of confirming the word. और महिमा का दर्शन प्रकट करना यह परमेश्वर का तरीका है उस वचन को पूर्ण करने के लिए. Yeah. First, 2 Peter chapter 1. दूसरा पत्रस अध्याय 1 12 to 21. 12 से लेके वचन 31 तक. Discipleship is not built on spectacular visions, but on the inspired, unchanging word of God. और चेले बनने की प्रक्रिया जो है किसी दर्शन पर निर्भर नहीं होती जैसे हम देखते हैं, लेकिन वह परमेश्वर के वचन पर निर्भर होती है. Nor do we put Moses, Elijah, and Jesus on the same level, as Peter has said. और जैसे पतरस ने कहा उस तरीके से हम यीशु, मूसा और एलिया को एक ही स्तर पर नहीं रख सकते. It is Jesus only, His word, His will, His kingdom. केवल यीशु, उसकी इच्छा और उसका राज्य ही. His word and His glory. उसका वचन और उसकी महिमा. Well, the 3 men allowed to say this experience to the other 9. और ये इन तीनों के अनुभव को उन्होंने उन 9 के साथ बांटने के लिए कहा. No, the 3 men were not allowed. ओके. इन तीनों को अनुमति नहीं दी गई थी कि वो 9 चेलों के साथ अपने इस अनुभव को बांटे. No doubt their explanation and their resurrection brought great encouragement to the believers. इसमें कोई शक नहीं कि उनका पुनरुत्थान जो है वह विश्वासियों के लिए एक बड़ा काम किया. The last thing is correction. और आखिरी है सुधार. After confusion, you would have written about confirmation, and after confirmation comes correction. और कंफ्यूजन के बाद आपने कंफर्मेशन लिखा होगा और उसके बाद आता है करेक्शन अर्थात सुधार. 9th chapter verses 11 to 13. और अध्याय 9 वचन 11 से लेके 13 वचन तक. The disciples now understood God's plan much better. और चेलों को अब समझ में आ गया कि उसकी जो योजना है वो अधिक उत्तम है. But they were still confused about the coming of Elijah to prepare the way for the Messiah. लेकिन वो अभी भी उनके मन में गड़बड़ी थी कि मसीहा के आने से पहले जो तैयारी थी एलिया की उसके विषय में. They knew the prophecies in Malachi chapter 3 verse. मलाकी 3 वर्स 1. मलाकी 3 अध्याय के एक वचन की इस भविष्यवाणी को वो जानते थे. And chapter 4 verses 5 and 6. और अध्याय 4, 5 और 6 वचन. And that the teachers expected prophecies to be fulfilled before Messiah appeared. और शिक्षक चाहते थे कि ये सारी भविष्यवाणी मसीह के आगमन से पहले पूरी हो जाए. Had Elijah already come and they missed him? क्या
एलिया तो पहले ही आ चुका था और उसने उसको खो दिया, or was he yet to come? या वो आने वाला है। Perhaps the appearing of Elijah on the mount was the fulfillment of the prophecy. लेकिन एलिया का रूपांतरण के पहाड़ पर प्रकट होना उस भविष्यवाणी का पूरा होना था। Jesus made two statements very clear. यीशु ने दो वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहे। First, पहला, for those who had trusted in him, this Elijah was John the Baptist. जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके लिए यह एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। For John had intended prepared the way before him. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के आगमन से पहले उसके लिए मार्ग को तैयार किया। John had denied that he was Elijah come from the dead. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसका इनकार भी नहीं किया कि वह He had denied. ओके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसका इनकार किया कि मैं एलिया नहीं हूँ। He denied that he was Elijah come from the dead. और उसने इस बात का इनकार किया कि एलिया मुर्दों में से जी उठा, इस बात का इनकार किया। John 1:21. यूहन्ना अध्याय 1 उसका 21 वचन। John 1:25. यूहन्ना 1 उसका 25। But he did minister in the spirit and the power of Elijah. लेकिन उसने जो सेवकाई की वह एलिया की आत्मा और उसकी सामर्थ्य में होकर सेवकाई की। Luke 1:16 and 17. लूका अध्याय 1 16 और 17 वचन। The second factor that Jesus clarified is, और दूसरी बात यीशु मसीह ने यहाँ पे स्पष्ट की, there would be a future Elijah. हेलमेट लगे तो There could be a future coming of Elijah. उसने यहाँ पे प्रकट की कि भविष्य में एलिया आ सकता है, Just as Malachi had predicted. जैसा मलाकी ने अपने पुस्तक में लिखा। Matthew 17:11. मत्ती 17 अध्याय उसका 11 वचन। Before the time of great tribulation. महासंकट के समय से पहले। Some students connect this with Revelation chapter 11 verses 12. और कुछ विद्यार्थी जो है इसको इस अध्याय 11 और उसके 12 वचन से कनेक्ट करते हैं। 2 to 12. अध्याय 11 2 वचन से लेके 12 वचन तक कनेक्ट करते हैं। सर विच चैप्टर? 11. रेवलेशन 11. ओके, दैट इज रेवलेशन। Yeah, Revelation. ओके, कुछ विद्यार्थी जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 2 वचन से लेके 12 वचन से इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। The nation did not accept John's ministry. और राष्ट्र ने यूहन्ना की सेवकाई को स्वीकार नहीं किया। If they would have received John, यदि उन्होंने यूहन्ना को स्वीकार किया होता, he would have served as the Elijah. तो वह एलिया के समान सेवा किया होता। And उसकी सेवा एलिया के समान की होती। and they also would have received Jesus. और उन्होंने यीशु को भी स्वीकार किया होता। They rejected both men and allowed them to be slain. और उन्होंने दोनों का इनकार किया और दोनों को मरने के लिए दे दिया। Then power comes from faith. और उसके बाद आता है विश्वास के द्वारा सामर्थ। Power comes from faith.
विश्वास Now, सॉरी सामर्थ विश्वास के द्वारा आता है। yeah. Yeah. Now, we'll study this next class. और अगले कक्षा में हम इसको अध्ययन करेंगे। Shall we bow down in prayer? आइए हम प्रार्थना में जाएं। Thank you, Lord, for your marvelous teachings this morning you gave us. धन्यवाद आज की सुबह आपके अद्भुत शिक्षाओं को जो आपने हमें दिया प्रभु। Your word is a guide for us. आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है। As the disciples stumbled many aspects in their confession and in acknowledging you, और जिस प्रकार चेले प्रभु जी कई क्षेत्रों में और उनके कन्फेशन में प्रभु जी वो लड़खड़ाए, we also stumble many times, Lord. कई बार हम भी प्रभु जी लड़खड़ा जाते हैं। Help us to be more faithful and sincere. सहायता कर प्रभु जी कि हम विश्वास योग्य और गंभीर ऐसे तरह चेले बने। And let the Holy Spirit give the inner revelation about who our Lord Jesus Christ is. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर में हमें वो प्रकाशन दे कि हम जान पाए कि हमारा यीशु मसीह कौन है। In Jesus' name. यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।